Chalo. Today we are discussing second order homogeneous second order uh, linear differential equations with constant coefficients. Okay, so we are going to discuss today. The topic is second order linear differential equations with constant coefficients. Before we start, let us once uh, अरे फिर से तो है। चलो ठीक है, कौन है? हेलो लगे, ठीक है, चलो बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है? तो ठीक है। हाँ, कोई देखा तो कोई आया नहीं, ठीक है। सो दिख रहा है ना स्क्रीन, तो दिख रहा है, ठीक है। सो हम लोग आज ही स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन विल बी d2y upon dx2 plus some function of x which is p1x into dy by dx plus p0 x। अभी मैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं लिख रहा हूँ, मतलब इन जनरल पहले लिख रहा हूँ चीजें। सो दिस इज इन जनरल, so this is the most general form of second order ordinary differential equations. So this is the most general form of the second order ordinary differential equations. Now main thing है what is this, अब इसको physics wise समझें तो these p0 and p1 are called as your coefficient functions, and they are generally continuous functions of x. These are coefficient functions and they are continuous functions. These are continuous functions on the interval of existence of the solution. Interval of existence of the solution. Okay. These are continuous function on the interval of existence of solution, and gx in physics mostly we refer to as the forcing function. Okay, so this is it. Now generally what generally क्या होगा कि जैसे मान लो solutions इसके निकलेंगे, let us say we'll get some solutions. So we are right now more interested in finding whether the solution for this differential equation will be linearly dependent or linearly independent. Okay, so by linear dependent independent का से क्या मतलब होता है, मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ पहले. So if I'm saying my solution is linearly dependent, so if I'm saying my solutions are linearly dependent, that is मान लिया y1
and y2 are two solutions of second order ordinary differential equations. और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इट इंप्लाइज y1 by y2 को तुम कोई कांस्टेंट टाइम्स लिख सकते हो. मतलब बेसिकली यू कैन राइट वन सॉल्यूशन एज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अनदर. इसको हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट. ठीक है. और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो, दैट इज इफ यू कैन नॉट राइट वन सॉल्यूशन एज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अनदर solution, then we'll say that solution is linearly independent. Okay, but how to verify? या तो आप ऐसे वेरीफाई करो. लेट अस से somebody says कि कि हाउ टू वेरीफाई दीज, कि भाई ये लीनियरली डिपेंडेंट होते तो इंडिपेंडेंट होते, तो वील यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज Wronskian determinant. Wronskian determinant to understand whether the solution we have is linearly dependent or linearly independent. ठीक है. तो उसको कैसे क्या करेंगे देखो. हालांकि Wronskian डिटर्मिनेंट हम फंक्शनल डिपेंडेंस में निकाल सकते हैं, बट वहां पर ये नेसेसरी कंडीशन नहीं बनाता है. लेकिन फॉर सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस इट इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कि Wronskian डिटर्मिनेंट का जीरो होना या Wronskian डिटर्मिनेंट का नॉन जीरो होना will imply linear dependence and linear independence. मैं लिख रहा हूँ, डोंट वरी, मैं क्या लिख रहा हूँ पहले समझना. ठीक है. तो मैं इन जनरल लिखने से पहले लेट मी जस्ट राइट द फॉर्म फॉर द फॉर्म फॉर टू सॉल्यूशंस. तो मान लो टू सॉल्यूशंस हैं. ये क्या है सॉल्यूशंस? दीज टू आर सॉल्यूशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका Wronskian डिटर्मिनेंट ऐसा डिफाइन करते हैं, y1 y2 y1 dash and this is how you define the Wronskian determinant. ठीक है. यहाँ तक किसी को समस्या? This is how you define the Wronskian determinant. Okay. बैटरी कहाँ से? ये मेरे को आवाज नहीं आ रही तुम लोग की? हाँ हाँ भैया. ठीक है. ठीक है. पता नहीं चलता मुझे बोल रहे हो सो रहे हो क्या कर रहे हो. ठीक है. सो दिस इज योर Wronskian determinant. मतलब अब मैं तुम्हें एग्जांपल से मैं तरीके से समझाता हूँ. मतलब हालांकि चलो मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ. देखो मान लेते कोई दो सॉल्यूशंस लीनियरली डिपेंडेंट है. मान लेते कोई दो सॉल्यूशंस लीनियरली डिपेंडेंट है. मान लेते हैं y1 y2. इसका मतलब y1 को क्या लिख सकते हो? y1 by y2 को कुछ कांस्टेंट लिख सकते हो. मतलब y1 कैन बी एक्सप्रेस एज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2 और y2 कैन बी एक्सप्रेस एज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y1. वन इन द सेम थिंग. डिफरेंशिएट करो. तो y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश डिवाइडेड बाय y2 होल स्क्वायर. ये होना चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है. इज इक्वल टू जीरो आएगा कि नहीं आएगा? Yes or no? If I am saying two solutions are linearly dependent, इसका मतलब y1 comma y2 एक मतलब one can be expressed as a constant multiple of another. तो ऐसा लिखा. डिफरेंशिएट किया तो क्या है? क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि y1 and y2 satisfy my सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडी मतलब मैंने लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया, सेकेंड ऑर्डर का मान लेते हैं. तो अगर ये दोनों उसको सॉल्व कर, मतलब इन दोनों की सॉल्यूशंस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स तो डिफाइंड होने चाहिए. तो मैंने डिफरेंशिएट किया तो कोई दिक्कत नहीं है. इक्वल टू जीरो इंप्लाइज क्या हुआ? y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश शुड बी इक्वल टू जीरो. इट इंप्लाइज y1, इसको ऐसे लिख सकते हैं y1 y2 y1 डैश y2 डैश इक्वल टू. इज दैट फाइन? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ अगर ठीक. सॉल्यूशंस लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका जो Wronskian डिटर्मिनेंट है, जो मैंने अभी अभी ऊपर ऊपर लिखा, वो क्या आना चाहिए? जीरो के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो ये Wronskian डिटर्मिनेंट है, थोड़ा ध्यान से देखो. और अगर मैं ऐसा लिख दूं कि Wronskian डिटर्मिनेंट जीरो है, तो वापस तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश शुड बी इक्वल टू जीरो. और अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा? y1 डैश अपॉन y2 y1 डैश अपॉन y1 इज इक्वल टू y2 डैश अपॉन y2 डैश अपॉन y2. और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो आ जाएगा ln y1 इज इक्वल टू ln y2 प्लस ln ऑफ k. यहाँ से प्रूव हो रहा है कि y1 इज इक्वल टू क्या? k by 2. सो इन एनी केस इफ आई एम राइटिंग कि y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, इट इम्प्लाइज दैट Wronskian डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए इनका, वो क्या होना चाहिए? जीरो. और अगर Wronskian डिटर्मिनेंट जीरो है तो इट इम्प्लाइज y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट. इज दैट फाइन टू यू? अगर मैं कह रहा हूँ कि y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो हमेशा याद रखना कि इनका जो Wronskian डिटर्मिनेंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? नॉन जीरो. इज दैट फाइन टू यू? हाँ भैया.
देन यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। So, यहाँ तक क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम सबसे इजी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेके देता हूँ तुमको, जो तुम पढ़ते आए हो फ्री ऑसिलेशंस का। इफ यू टॉक अबाउट फ्री ऑसिलेशन की इक्वेशन क्या थी? d2y upon dx2 प्लस d2y upon dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से y एज अ फंक्शन ऑफ t क्या आएगा? सोचो, ये आ जाएगा c1, कुछ साइन लिख दो। अरे ये क्या बड़ा अजीब सी बात है, साइन लिख दो प्लस c2 कॉस लिख दिया। इसका रोन्सकाइन क्या आएगा? सोच के जवाब दो। नॉन जीरो आएगा, पक्की बात है। साइन ओमेगा टी, इधर से क्या आएगा? कॉस ओमेगा टी, और इधर से क्या आएगा? साइन ओमेगा टी का डायरेक्टिव कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का डायरेक्टिव माइनस साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से अल्टीमेटली ये जो चीज आएगी वो आएगी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, एंड सर्टेनली माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर नॉन जीरो आएगा, क्योंकि अगर ओमेगा जीरो हो गया तो फिर ये तो वाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। कॉन्स्टेंट थोड़ी होता है इसका सोल्यूशन। समझ पाए मेरी बात? हाँ, मतलब फिर इधर वही हो रहा है ना कि y1 और y2 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी समझ लो कि देखो, तुम साइन ओमेगा टी को किसी भी तरीके से कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ कॉस ओमेगा टी नहीं लिख सकते। तुम इसके फेज में डिफरेंस ला सकते हो पाई बाय टू कैन, देन यू कैन राइट लाइक दिस, बट यू कैन नॉट राइट साइन ओमेगा टी इज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ कॉस ओमेगा टी। इज दैट फाइन टू यू? थ्री सॉल्यूशंस क्या यस। कहलाएंगे? थ्री सॉल्यूशंस है हाँ। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। मैथमेटिक्स में द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को फंडामेंटल सेट भी बोलते हैं। मतलब कोई बोले कि these two solution form a fundamental set of solution, yes indeed, yes. So they form fundamental set of solutions. Is that fine to you? हाँ भैया, ठीक। ठीक है। सो मोस्ट ऑफन जब भी हम कभी करेंगे क्वेश्चंस अभी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के, तो वील एनकाउंटर टू काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं तुम्हें ऐसी मैथ्स में ज्यादा ले जाते नहीं ले जाता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा ऊपर ऊपर से फिजिक्स से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखो, तो वेन एवर यू एनकाउंटर second order linear differential equations, so it is not always necessary you will get a homogeneous kind of equation. You may get homogeneous, but you may also get a non homogeneous kind. For example, जैसे मान लो तुम्हारा फोर्स ऑसिलेटर, फोर्स ऑसिलेटर तो सबने पढ़ा है बचपन में। फोर्स ऑसिलेटर अगर नहीं भी याद है तो इतना तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म तो याद ही है सबको कि एम बाई डबल डॉट, सॉरी एम बाई डबल डॉट प्लस सम कुछ ऐसे लिख दो, कुछ डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है वाई डॉट, और प्लस कुछ भी लिख दो यहाँ पे के वाई। एंड यहाँ पे क्या होता है? कुछ ना कुछ एक फोर्स दे रखी होती है। इन जनरल वील राइट। अब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आता है उसमें हमको दो पार्ट्स करने पड़ते हैं। वी हैव टू डू टू पार्ट्स। तुम चाहो तो फिर क्या कर सकते हो? वाई डबल डॉट का ऐसे लिख दो, गामा अपॉन के, गामा अपॉन एम कर दो वाई। ये सब तो मतलब ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये सब तो तुम कर लोगे अपना आप ही। और इसको एफ नॉट बोल दो लेटर से कॉस ओमेगा टी, है ना। और फिर तुम क्या कर सकते हो? बेसिकली इस तरीके से कुछ कर देते हो, वाई टू और ये कुछ टू वी वाई। फिर आई थिंक ऑल दीज थिंग्स यू माइट हैव सीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो पार्ट है ये फोर्सिंग फंक्शन है, और ये अलग फंक्शन। तो अब क्या करना पड़ता है इन सब में? यू हैव टू राइट टू सॉल्यूशंस। एक तो हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और एक हो जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। इज दैट फाइन टू यू? एक हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, और एक हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है? इट इज द सोल्यूशन फॉर द होमोजीनियस पार्ट। होमोजेनियस पार्ट का मतलब मान लेते हैं कि एफ नॉट कॉस ओमेगा टी एग्जिस्ट नहीं करता, इट वाज जीरो, एंड यू फाइंड द सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और फिर इसको लेते हुए वी टेक अनदर पार्ट विच इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जब भी आएगा, इट विल नेवर हैव, इट विल नेवर comprise of any constants. It will never comprise of any आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। तो ये सबसे आसान तरीका है, अगर तुमसे कोई कहे कि इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल कौन सा है और होमोजीनियस पार्ट कौन सा है, होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन कौन सा है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन सा है और पर्टिकुलर इंटीग्रल कौन सा है, तो आंखों से देख के पता कर सकते हो। पर्टिकुलर इंटीग्रल विल नेवर हैव एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। तुम अभी जैसे हम करेंगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इज दैट फाइन टू यू? हाँ हाँ भैया। ठीक है, ये सब बिल्कुल स्टैंडर्ड ट्वेल्थ वाला ही है, मैं फिर भी एक बार इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ जिससे कि तुम
जब हम क्वेश्चंस करें तो दिक्कत नहीं। चलो, एक और चीज जो एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी कुछ लोग, वो ये है कि रोन्स्किन की डिपेंडेंस, मतलब अब वापस वही है, मैं उसका प्रचार नहीं करना चाह रहा, पर फिर भी प्रचार करूं तो मैंने कुछ बना रखे हैं और मतलब लेक्चर्स बना रखे हैं इसमें, मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया हुआ है, मैंने और डिटेल में पढ़ाया हुआ रोन्स्किन। तो वहां पे और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन है, लेकिन जितना तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड है उतना मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, एक चीज याद रखना कि एक होता है अबेल्स फॉर्मूला, बाकी बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं रोन्स्किन की, मैं उतना नहीं डिस्कस कर रहा अभी तुम्हारे साथ। एक अबेल्स फॉर्मूला याद कर लो। अब ये करता है कि एबेल्स फॉर्मूला यूजुअली एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आपको रोन्स्किन किसी पॉइंट पे दे रखा है और किसी जनरल पॉइंट पे पूछा जा रहा है, मतलब यू आर आस्क्ड रोन्स्किन एट सम अननोन पॉइंट एंड यू नो रोन्स्किन एट सम नोन पॉइंट। सो इसका फॉर्मूला ये होता है कि रोन्स्किन एक्स नॉट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे फॉर्म लिख देता हूँ कुछ भी ऐसा, d2y अपॉन dx2 प्लस p dy बाई dx प्लस कुछ भी लिख दो यहाँ पे क्यू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा e की पावर ऑफ माइनस ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, तो हम एक्स नॉट से लगाकर एक्स, या इन जनरल भी ऐसे याद कर लो कि रोन्स्किन एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय के टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रल पी डी एक्स, और फिर ये के को डिटरमाइन करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होती है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ से क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि रोन्स्काइन कभी भी अपना साइन चेंज नहीं करता है। अगर वो नॉन जीरो है तो अपना साइन कभी चेंज नहीं करेगा, नेवर चेंजेस इट्स साइन। कैसे? मान लो किसी एक पॉइंट पे मुझे ये पता चल गया कि रोन्स्काइन नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो, या मान लेते पॉजिटिव पता चल गया, तो ये पॉजिटिव होगा, और ये तो पॉजिटिव हमेशा ही होता है, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, रोन्स्काइन विल बी थ्रू आउट पॉजिटिव, यस और नो? अगर मुझे ये पता लग जाए किसी एक पॉइंट पे रोन्स्काइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर मुझे किसी एक पॉइंट पे ये पता लग जाए कि रोन्स्काइन नेगेटिव है, इट इंप्लाइज रोन्स्काइन विल बी नेगेटिव। इसका मतलब अगर रोन्स्काइन नॉन जीरो आता है तो हमेशा याद रखना रोन्स्काइन नेवर चेंजेस साइन, और अगर किसी पॉइंट पे रोन्स्काइन जीरो आ जाए गलती से भी, इट इंप्लाइज फिर रोन्स्काइन थ्रू आउट ही जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस और नो? हाँ ठीक है। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट असर्शन क्या ड्रॉ हो रहा है, अगर तुम्हें ये पता लग जाए किसी एक पॉइंट पे भी रोन्स्काइन नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, तो बात ही खत्म हो गई, रोन्स्काइन नॉन जीरो हो जाएगा। रोन्स्काइन अगर नॉन जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ पाए मेरी बात? और अगर किसी एक पॉइंट पे भी तुम्हें पता लग हाँ जाए हाँ कि जीरो हो गया, इसका मतलब रोन्स्काइन थ्रू आउट नॉन जीरो होगा, इसका मतलब y1 और y2 क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई? हाँ ठीक है। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आई होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है? तो देखो, एग्जाम में मोस्टली ये जो टॉपिक है उसमें रोन्स्काइन में यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखा है एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो थोड़ा सा अपना आंख कान खोल के रखना, तो तुम्हें क्लिक मतलब हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन इधर से। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जाम का क्वेश्चन ही करा देता है, एक मिनट मुझे से ना, एक मिनट कहीं तो मिल जाएगा। जैसे ये आया हुआ क्वेश्चन, देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन, अरे कहाँ जाए कहाँ जाओ कहाँ जाओ। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं ये मैं क्वेश्चन को बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये दे रखा है कि लेट x1 and x2 be two Li solutions, two Li solutions of two Li solutions of what, of d2x upon dt square plus 2 dx upon dt plus ftx equal to 0 if Wronstein at 0 is given to be equal to 1. What is the value of Wronstein at 1? ये पूछा हुआ एग्जाम। कैसे करोगे इसको? देखो, तुम्हें ऑलरेडी पता है Wronstein at सम
नोन पॉइंट, तुम्हें ऑलरेडी क्या पता है, रोन्सकीन एट सम नोन पॉइंट। नोन पॉइंट क्या है, जीरो पे तुम्हें पता है कि रोन्सकीन की वैल्यू क्या होगा। अब तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द रोन्सकीन एट, तुम क्या लगाओगे, अबेल्स फॉर्मूला मैंने अभी भी सिखाया, समझ पाए मेरी बात। अभी रोन्सकाइन का फॉर्मूला क्या सीखा है, रोन्सकाइन एट सम अननोन पॉइंट इज गिवन बाय रोन्सकीन एट सम नोन पॉइंट इंटीग्रेशन जीरो से लगाकर एक्स, एक्स यहाँ पे वन आ जाएगा सॉरी, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस टू डी एक्स, टू डी टी सॉरी, समझ पाए मेरी बात। टी की जगह कौन आ गया, टू आ गया, तो सिंपली क्या हो गया, रोन्सकीन एट वन इज इक्वल्स टू रोन्सकीन एट जीरो इंटू ई की पावर माइनस टू, आंसर क्या हो जाएगा वन अपॉन ई स्क्वायर। इज दैट फाइन। बस ये याद रखना, इसमें ये फॉर्म ऐसी रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब व्हाट आई वांट टू से इज, अगर जैसे ऐसा है तुम्हारे पास ए नॉट बाई डबल डैश प्लस ए वन बाई डैश प्लस ए टू बाई, तो तुम बस ये डिवाइड जरूर कर लेना ए नॉट को सब तरफ। इज दैट फाइन टू यू। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक ऐसे तक मुझे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है सर, ये तुम कर लोगे आते। क्लियर है यहाँ तक, बढ़े आगे लाइफ में। हाँ ठीक है, ओके। सो अभी अब आते हैं अपन लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पे, ठीक है। तो ये ज्यादातर इसी से पूछते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछते, तो मैं अभी और डिफिकल्ट कर नहीं रहा हूँ इसको, यहीं पे एंडिंग इट अप हियर। तो दो तीन चीजें assertions ध्यान रखना। पहली बात, y1 y2 अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो बस रोन्सकाइन जीरो, रोन्सकाइन फिर जीरो हो जाता है, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो रोन्सकाइन नॉन जीरो जाता है, एक ये याद रखना। दूसरा बस ये याद रख लेना कि रोन्सकाइन कभी भी अपना साइन चेंज नहीं करता, मतलब ऑब्वियस ही बात है, अब ये मत कह देना जीरो हो गया तो क्या, जीरो में साइन की बात ही नहीं होती है। बट ये याद रखना कि रोन्सकाइन कभी भी अपना साइन चेंज नहीं करता, रोन्सकाइन थ्रू आउट एक ही साइन मेंटेन करेगा, या तो रोन्सकाइन थ्रू आउट पॉजिटिव होगा या रोन्सकीन थ्रू आउट नेगेटिव ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस में जहां पे तुम्हारे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड है, वहां ऐसा होगा कि रोन्सकीन पॉजिटिव भी हो गया, रोन्सकीन नेगेटिव भी होगा, ये गड़बड़ हो सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कि तुमसे मैं पूछूं कि लेट अस से कि आई हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट अस से आई हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके की, डैश प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू जीरो, और मैं तुमसे पूछूं कैन, और लेट अस से आई एम डिफाइनिंग इट ऑन, let us define it on minus वन कॉमा वन, ठीक है। let us define it on minus वन कॉमा वन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन कर दी मैंने, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या रोन्सकाइन ये फॉर्म ले सकता है कोसाइन ऑफ एक्स, या मैं पूछूं कि क्या रोन्सकाइन साइन ऑफ एक्स हो सकता है, या मैं पूछूं क्या रोन्सकाइन एक्स हो सकता है, विच कैन बी ए प्रोबेबल आंसर। तो देखो कोसाइन एक्स नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कोसाइन कहां से कहां लाया करता है, माइनस वन से लेकर प्लस वन के बीच में जाता है, और ये कैसा फंक्शन है, अच्छा ये माइनस वन से वन मत रखो, एक्स बिलोंग्स टू, तुम ले लो लेट अस से जीरो से टू पाई ले लो बेटर, ठीक है, जीरो से टू पाई ले लो। अब मुझे जवाब देना, अगर मैं जीरो से टू पाई के बीच में इसका सोल्यूशन डिफाइन करता हूँ, मान लो कुछ भी होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, अभी उससे मतलब नहीं मेरा, मैं जनरल क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देता हूँ जिसका इंटरवल ऑफ एक्जिस्टेंस जीरो से टू पाई के बीच में, तो क्या कोसाइन ऑफ एक्स रोन्सकाइन हो सकता है, मतलब कैन रोन्सकाइन टेक सच काइंड ऑफ फंक्शनल फॉर्म, यस और नो, नो, क्योंकि रोन्सकाइन, अच्छा, अ- अगर रोन्सकाइन जीरो आ रहा है, अगर रोन्सकाइन नॉन जीरो आ रहा है तो वह थ्रू ही नॉन जीरो होना चाहिए, अपना वो साइन चेंज नहीं हम्म। करेगा उस पूरी इंटरवल के ऊपर, पर जीरो से टू पाई के बीच में कोसाइन एक्स अपना साइन चेंज कर देता है। इज दैट क्लियर। हाँ राइट। सिमिलरली रोन्सकीन ऑफ एक्स साइन एक्स हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन भी अपना साइन भी वो अपना साइन साइन चेंज कर चेंज लेता है। करेगा ना। सिमिलरली एक्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स के लिए यहाँ बीच में एक जीरो आ गया, तो ऐसा नहीं जीरो, हो सकता और कि रोन्सकन जीरो अगर में से जीरो हुआ तो थ्रू आउट जीरो होगा। थ्रू आउट ही जीरो होगा, राइट। और अगर नॉन जीरो होगा तो थ्रू आउट ही नॉन जीरो होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो भी हो जाए और जीरो नॉन जीरो भी हो जाए। तो ये तीनों ही फंक्शनल फॉर्म्स मतलब रॉन्ग है रोन्सकीन के लिए। इज दैट फाइन टू यू। मतलब लेकिन यस यस। इस लेवल के क्वेश्चन जनरली मैथ्स के एग्जाम में बनाते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आए हैं, बट फिर भी मैंने तुम्हें एक एडिशनल चीज बता दी, प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओके। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब रोन्सकीन से आगे बढ़ते हैं और एक कांस्टेंट कोफिशिएंट की इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मेरा टास्क अभी यही है कि तुम्हें तुम्हें एग्जाम के आसपास ज्यादा पढ़ा दूं। अरे कहाँ गया यार, ये बड़ी समस्या का केंद्र है। रुक जाओ।
नहीं तो भी हैंग हो जाएगा फिर ये। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया, हैंग हो गया। 2 मिनट रुकना। अनुष्का ही है आज? हाँ भैया। मुझे हाँ लगता आई हूँ। है क्लास लैब में तो आती नहीं, यहाँ पे तो ठीक ठाक आ रही है। अनुष्का के ये ऑन, पढ़ना पड़ेगा ना। अनुष्का के ये ऑन रिकॉर्डर कर दिया आपने अभी। चल ठीक है, मजाक करो मजाक करो। क्या कह रहा था? ऑन रिकॉर्डर कर दिया, मुझे नहीं समझा। ऑन रिकॉर्ड कर दिया मतलब यूट्यूब पे चला देता ना लेक्चर। ओ शिट, ओके हाँ। सो रॉन्ग। बट मुझे वाला आइडिया स्निग्धा ने दिया था कि ऑन रिकॉर्ड बोल देना, बढ़िया रहेगा। है ना। वाओ, फ्रेनेमीज बनाई है मैंने। सब सॉर्ट ऑफ फ्रेंड में मैं ही हूँ अभी। चल क्यों नहीं रहा कुत्ते का बच्चा बीच में यार। मेरी लाइफ भैया बहुत ये बेकार सब है, जब भी मेरे को ऑनलाइन जल्दी पढ़ाना होता है यूट्यूब तो कुछ पर ना कुछ पोपट हो जाएगा। जाता है। वो कहाँ चला गया इसका पेन यार। ठीक है, मतलब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया है कि मैं थोड़ा सा आइडिया देता जाऊं, मतलब तुम भूल गए हो तो। नहीं भैया, आइडिया तो है। पर ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। अरे कहाँ चला गया यार ठीक है, इसका पेन है। चला गया। टाइप कर दो भैया। अरे यार गोबर का बच्चा है क्या यार, एक नंबर का ये। एक मिनट रुक जा यार, वापस बंद करके स्टार्ट करते हैं। भैया आप ये सब ऐसे ही डालते हो क्या यूट्यूब पे? हाँ मैं ऐसे ही डालता हूँ। ये सबके वो बच्चे जो एडिटिंग डन। सब कोई देखेगा भैया। मेरे को यूट्यूब पे डालने का प्रयोजन मेरा बस ये है कि तुम लोग जब पढ़ो तो तुम्हारे लिए कोई इशू ना हो। मेरे को कोई वहां पे प्रचार थोड़ी करना है उसका। हाँ ना फिर प्रचार। सर भी देखेंगे। सर क्यों देखेंगे, सर सर क्यों एग्जाम देखेंगे? क्लियर करना सर को है। देखेंगे? सर को नहीं पता ना ये सब। सर को ये सब अरे नहीं अरे। बताने का, सर के सामने अंडरग्राउंड में जाने का। सर के सामने मत बोलने। देना हाँ, प्लीज कोई। हाँ, सर को लिंक ही मत देना प्लीज कोई। ये सर को बोलने का ऑफ भी नहीं है कोर्स ये कौन चीज। देने वाला है? सर को अगर बोल दिया हम गेट के एग्जाम की बोलने पढ़ाई कर को। रहे हैं तो सर कहेंगे कि क्या पागल हो तुम लोग, यू शुड डू रिसर्च भाई। हाँ, अभी डांट। या these are all corrupt करेक्ट examinations. एग्जाम हो जाएगा अभी। आप मैंने ऑन रिकॉर्ड, मैं ऑन कुछ नहीं बोला, ऑन कुछ नहीं रिकॉर्ड यू आर बोला। इमिटेटिंग सर नाउ। चल ठीक। या ये चलो क्लास ठीक मत है, डालो, मेरे हाँ? को हाँ आ नहीं रहा है। डाल। अरे तब मत डरिए। चल, ए वाई डबल डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी रियल कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो अभी क्या करते थे बचपन का, मैं तो याद कराता हूँ। तुम बस इसको ऐसे लिखते थे, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी, ऐसा कुछ याद करो। ठीक है, और बस इसको सॉल्व करके तुमको अलग अलग सोल्यूशंस मिलते थे। अब वही वाली बात है, अगर इसके सोल्यूशंस रियल यूनिक हैं तो क्या होगा। अगर इसके सोल्यूशंस, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अगर इसके सोल्यूशंस रियल और हाँ रियल है, अगर इसके हाँ भैया। नॉन रियल हैं, और इसके सोल्यूशंस अगर इक्वल टू 0 है, उस हिसाब से हमारी वो डिफाइन हो जाता है। तो इसके अगर सोल्यूशंस रियल हैं और अनइक्वल हैं तो इस फॉर्म की इक्वेशन बनती है। ऑब्वियसली यहाँ को C1 C2 लगा लेना अपने हिसाब से। ठीक है, अगर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0 आ गया, मतलब अगर इमेजिनरी सोल्यूशंस आते हैं तो आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो, y इज इक्वल टू C1 e की पावर ऑफ, मतलब बेसिकली m1x ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस C2 e की पावर m2x। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर इमेजिनरी सोल्यूशन है तो m1 m2 फिर क्या हो जाएंगे, कुछ अल्फा कॉमा बीटा और फिर अल्फा कॉमा माइनस बीटा, इस फॉर्म के हो जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से चलें तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर अल्फा एक्स इंटू कुछ C1 कॉस बीटा एक्स और फिर C2 साइन बीटा एक्स, ऐसा कुछ। समझ पाए मेरी बात, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक हाँ हाँ, है ना, मतलब दैट इस इज फॉर्म में लिख हाँ। सकते हो, जनरल इस फॉर्म में थ्रो कर सकते हो, एंड देन यू कैन ऑलवेज राइट इट, मतलब इसको इस फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। और अगर इक्वल टू 0 आ जाते हैं देन योर सोल्यूशन विल बी क्या कहते हैं इसको, C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर ऑफ अल्फा एक्स, या ई की पावर कोई एक रिपीटेड रूट होगी, अल्फा बीटा नहीं होगी, फिर अल्फा। इज दैट फाइन टू यू? हाँ ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी कहानी। इसमें कोई और दूसरी कहानी नहीं है, मतलब इसमें कुछ और ज्यादा बात करने को है नहीं। ठीक है, मोस्ट स्टैंडर्ड केस तुम्हारा बनता है, क्या कहते हैं, मोस्ट स्टैंडर्ड केस तुम्हारा बनता है
डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो तुम खुद पढ़ लेना चाहो तो, बाकी ऐसा कोई इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं आज के दिन। आज के दिन इस पे क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम में कोई तुम्हें डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के सॉल्यूशंस नहीं पूछेगा, चिंता मत करो। पूछेगा तो सॉल्व कर लेना, ऐसा भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और तुम कहोगे तो मैं वो भी पढ़ा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, बट दैट इज नॉट अ बिग डील टू डू। चलो सीधे अपन आते हैं, भारी भरकम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, तो मेरा आज का ये टास्क था कि इसको स्टार्ट करके क्वेश्चंस तो ले आऊंगा तुमको, क्योंकि एक क्लास और लेते हैं और खत्म करते टॉपिक। ठीक है, और फिर तुम देख लेना, कुछ मुझसे छूट गए हो क्वेश्चंस तो तुम अपने आप देख लेना इसका। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसिडर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिखा जा रहा है कंसिडर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज दिस, है ना, विद बाउंड्री कंडीशन y0 इज इक्वल टू 1/5। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ भैया, आ रही है। When plotted as a function of x, that plotted as a function of x for all x greater than equal to 0, which of the following can be said with certainty? Can be said with certainty. Certainty से मेरा मतलब है 100%, कौन सा सोच सकते हो कि ये सही होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है कि yx oscillates between positive and negative। yx जो भी फंक्शन आएगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में ऑसिलेट करेगा विद एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग टू 0, विद एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग टू 0। ठीक है, पहला ऑप्शन ये दे रखा है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हैज एन एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम समझते हो? एक्सट्रीमम से मतलब होता है मैक्सिमम या मिनिमम, दोनों को ही यूज कर सकते हैं। एक्सट्रीमम के अंदर वो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। एक्सट्रीमम का मतलब होता है मैक्सिमम मिनिमम बोथ, हो सकता है मैक्सिमम भी, हो सकता है मिनिमम भी, क्योंकि वो सर्टेनिटी बोल रहा है। तो अगर हो सकता है कि ऐसा केस बन रहा हो जहां वो सर्टेनली ये नहीं कह पा रहा हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो उसने जनरल ऑप्शन डाल दिया हैज एन एक्सट्रीमम इन 0,1। फिर बोला जा रहा है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, और फिर पूछ रहा है कि फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्वेश्चन समझ पाए? क्वेश्चन क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ भैया। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये होती है आजकल, जूम में नया नाटंकी चालू हुई, वो एकदम से बंद कर देता है मीटिंग, पता ही नहीं चलता कब बंद होगी। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे मीटिंग चालू करने से पहले अलार्म भरना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, चलो कैसे स्टार्ट करें? करें स्टार्ट? हाँ हाँ भैया। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ। m² + 4m + 4 = 0, इसको सारे को इधर ले आओ। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, इसमें तो किसी को समस्या नहीं है भाई, देख लो d2y/dx to +4dy/dx + 4y। ये याद तो है ना बच्चों लोग? ये नहीं याद हो तो मुझे पूछ लो क्या करने का। हाँ नहीं नहीं, आता है, ये तो काफी मतलब ना बस, मुझे तो आता है, मैंने किया है ये। हाँ ना, वो मतलब आइडिया है ना, मतलब इसको d² + 4d + 1 करके टाइम्स हाँ y। हाँ, उसको m² ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है m = -2 इज अ रिपीटेड रूट। ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं मेरे हिसाब से। अब क्योंकि रिपीटेड रूट है तो सोल्यूशन किस फॉर्म के होंगे? सो y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या होगा सोचो? इट विल बी c1 + c2x into e⁻²x। आई होप इट इज क्लियर। हाँ भैया। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है? y0 पे 1/5 दे दिया, तो y0 पे 1/5 देने का मतलब क्या है? यहाँ 0 रखा और यहाँ 1/5 किया, तो ये हो जाएगा c1 = 1/5। क्यों? क्योंकि c2 के साथ तो 0 जुड़ा हुआ है, तो ये तो व्हाट आई वांट टू से कि ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो c1 1/5 हो जाएगा। इज दैट फाइन? तो सिंपली c1 c2 लिखने के बजाय मैं सिंपली कुछ कांस्टेंट लिख देता हूँ। सो दिस इज लाइक kx + 1/5 into e⁻²x। इज दैट फाइन टू यू? ये चीज समझ में आई? मतलब c2 भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा में, बस हाँ इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि y0 1/5 दे रखा था। अच्छा, सो सॉरी, y0 1/5 दे रखा ना, तो हाँ यहाँ 0 आ जाएगा, तो c1 1/5 होना चाहिए। ठीक है, डन। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम? हाँ हाँ, नहीं। नहीं नहीं, ठीक है ठीक ठीक है, है। अब आते हैं अपन, देखो yx ऑसिलेट्स फ्रॉम + to -1। ऑसिलेट समझते हो? ऑसिलेट का मतलब ये होता है कि
और एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग टू जीरो। तो तुमने अगर कभी मैं तुम्हें वैसे समझाता हूँ, जैसे मान लेते ई की पावर अल्फा एक्स का अगर तुम्हें फंक्शन बनाना है और साइन बीटा एक्स आगे दे रखा है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा सोचें। तो देखो साइन तो अपनी तरीके से काम करेगा, लेकिन भाई साहब ये ई की पावर अल्फा एक्स, तो ये मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो भी एग्जामिनर उसका दिमाग कैसे चला है। देखो ई की पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स, साइन किसके बीच में लाया करता है, प्लस माइनस वन के बीच में, राइट। तो ये जो भी फंक्शन का ग्राफ होगा वो हमेशा किसके बीच में लाया करेगा, माइनस ई की पावर अल्फा एक्स से लेकर प्लस ई की पावर अल्फा एक्स के बीच में लाया करेगा, हाँ या ना। एक हाँ बार ठीक है। है ना, ये जनरली यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, ये कुछ जनरलाइज्ड एम्पलीट्यूड है और सॉर्ट ऑफ वेरिएबल एम्पलीट्यूड है। तो ई की पावर अल्फा एक्स इंटू साइन बीटा एक्स इसके चला करेगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ई की पावर अल्फा एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ई की पावर अल्फा एक्स का ग्राफ ऐसे बनता दिख रहा है, ये टक 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 टक। राइट राइट, हाँ हाँ हाँ, और ई की वैसे पावर ऊपर जाए। माइनस ई की पावर अल्फा एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। हाँ और इसके बीच में साइन फंक्शन एनवेलप हो जाएगा, समझ पा रहे हो। हाँ, राइट राइट। ठीक है, क्योंकि